Assalamualaikum. Welcome back to another episode of Reclaiming Season 2 of Your Life. Today I'm sitting here with the super mom, Khudeja. Today we are going to discuss that coming from a Pakistani society, shadi means putting a break to your dreams or your business or your career-oriented self. But Khudeja is a living example of starting her passion and reigniting those passionate dreams that she once had before marriage, even after two little kids. So, Khudeja, please tell us a little bit about yourself. But first of all, thank you so much for coming here with two kids and managing to do this with us. Assalamualaikum, my name is Sudhir and I'm mom of two. I'm also running my business in the name of Hoops and Loops. It's a jewelry business, handmade jewelry and customized ones. So before I got married, I was also doing a business of fan making, and it was doing very well. But just because I have to get married, so I have to quit those dreams. So now I'm just reviving my passion for business. So that's how I started my business for jewelry. That's how I got this idea to start something new again. So I got this idea of jewelry making, so I just started. ठीक है. Okay. So, so you have restarted your jewelry business. How's it going? It's going well. So आप इसको single handedly manage कर रही हैं, like किस किस्म की jewelry आप बना रही हैं? Is it handmade या क्या? मतलब what are you doing in it? Yeah, some of the jewelry items are handmade, some of them are customized, and some of them are like being bought from somewhere else. ठीक है. अच्छा, on this point जो एक बहुत important चीज़ है जो like हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है, अनफॉर्चुनेटली इस 2023, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं प्रिवेलेंट है ही. दिस unrealistic expectation from girls to give up on their dreams under the pressure of responsibilities. How did you find, this massive courage to, fight this and still create your own identity? Basically, you cannot do it all alone. You always need support. If you are married and you have kids, then you always need support, supportive family, supportive husband. So, Alhamdulillah, in that case, I am very lucky to have a supporting husband. He's very much supporting, and I do have a very good and nice family. They support me and support my business as well. Like, if I need some time to do something new, if I want to create something, because it takes time to create jewelry, to imagine ideas. So it takes some time. तो वो time जो मुझे अपने लिए अपने creative work को देना होता है, तो मेरी family they are very supportive. तो वो मुझे encourage भी करते हैं, especially my husband. He's very much encouraging. वो he always like this कि do something, like start your passion, rekindle your passion, you should do it. तो जो एक gap मेरी शादी के बाद मुझे आ गया था, almost 5 years now, माशाल्लाह. तो जो gap आ चुका था, वो उस gap को fill up करने के लिए मेरे husband ने मेरी बहुत help की है कि you should do something, you should do something. So I have so many business ideas in my mind. I should do something like I should start again about my bag making, or should I do something about clothing? And because these are my basic interests. तो इंटीरियर डिजाइनिंग मतलब ये डिफरेंट इंटरेस्ट मेरे थे, लेकिन जो चीज मैं इजीली स्टार्ट कर सकी दैट वाज ज्वेलरी. तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड, बिकॉज आपको सपोर्ट बहुत नीडेड होती है. अब जो आजकल एनवायरनमेंट है स्पेशली मैरिड वुमेन्स के लिए, उनके लिए डिफिकल्ट होता है ऑब्वियसली. अगर आपको हर्डल्स आ रही हैं, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं कुछ या रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू विल फेस हर्डल्स. यू हैव डिफरेंट टाइमलाइन, डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज आफ्टर गेटिंग मैरिड. वो आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है उसके लिए कि हाउ टू manage your time, how to cope up with the responsibilities, how to cope up with the family, each and everything. You have to give space, you have to manage the space and time for everything. बिल्कुल. अच्छा, इसी पे रहते हुए जैसे आपने बहुत अच्छा एक एस्पेक्ट रेज किया कि लाइक हस्बैंड की सपोर्ट बहुत जरूरी होती है. सो आई हैव टॉक प्रीवियसली इन माय पॉडकास्ट अबाउट दिस एस्पेक्ट एज वेल कि हमारे यहाँ शादी को प्रीवियसली या अभी भी लाइक एट सम प्लेसेस समझा जाता है that it's like this, husband इधर है, husband की family इधर है, और the woman is supposed to be here. But now this concept is somewhat evolving. अब एक partnership के concept को consider किया जाता है कि शादी partnership के through चल सकती है, like both are equal partners. जैसे एक बात होती है कि I think I talked about it in another podcast as well, but जितना भी बात करें इस बारे में उतना कम है कि
पेरेंटिंग जो होती है वो दोनों पार्टनर्स ने करनी होती है. इफ अ फादर इज टेकिंग केयर ऑफ अ किड, इट्स नॉट बेबी सिटिंग, इट्स पेरेंटिंग, जस्ट लाइक द मदर इज डूइंग इट. So, like, what would you like to say about this concept of partnership? मतलब partnership कितनी important है एक relationship को लेके, और marriages के अंदर partnership से क्या positive changes आते हैं? Yeah, it is very much important because if your partners wants you to grow, that's the main point. If he or she wants you to grow, like if my husband wants me to grow, he wants me to do something, he wants me to achieve something, then he will push me towards that thing. So वो एक जो pushing होती है towards that, towards achieving that goal is very much important. तो जो parenting है वो भी आपकी mutual एक effort है. Both the partners have to put on their efforts like 100% because अगर आप एक दूसरे को support नहीं करेंगे तो you guys cannot see each other very long time. I mean, in a long way आप एक दूसरे को नहीं देख सकते जिस point पे आप एक दूसरे को देखना चाह रहे हैं. तो support and as you can say कि pushing towards the goal, that is very important. मतलब अगर आपकी wife है, if she wants to do something, if she had some dreams in her mind, then you should know it. You should push her. You should encourage her towards achieving that goals, those goals. Because देखिए obviously at the end of the day आप मिल के ग्रो कर रहे हो, मिलके grow करें because you are growing as a family. हाँ, growing as a family. और दूसरी बात ये कि in today's world you cannot expect one person to run the house. ठीक है, वो वाला आइडिया भी रीचेंज होने की जरूरत है, इवॉल्व होने की जरूरत है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ एक बंदे से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते. इट हैज टू बी द बोथ ऑफ यू. एंड बिसाइड्स फिर इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स ऑन दिस कल्चर ऑफ रेजिंग किड्स टुगेदर. वो वाला जो एक कॉन्सेप्ट था कि जो खैर अभी भी हर जगह पे होता ही है कि लाइक फादर इज सपोज टू बी दैट स्केरी फिगर जिससे डराया जाता है और बताया जाता है कि तुम्हारे अब्बू आएंगे तो मैं बताऊंगी उन्हें. सो आई बिलीव दोज आइडियाज आर चेंजिंग एज वेल विद टाइम बिकॉज इट इज नाउ द वर्ल्ड ऑफ को पेरेंटिंग. अगर आप को पेरेंट नहीं कर रहे और आप एक सिंगल, एक बंदा इस तरफ जा रहे एक बंदा इस तरफ जा रहे तो घर के अंदर वो वाला एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट हो सकता. डेफिनेटली. ठीक है. अच्छा, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट. हाउ आर यू मैनेजिंग योर बिजनेस राइट नाउ विद 2 kids? और क्या एजेस हैं दोनों की माशाल्लाह? As you know, I have 2 sons. One is of almost 4 years old. The other one is 1 year old. So it's that must be a lot of work. very much difficult for me to manage time in these days because after having my second baby, it was so difficult because I got some health issues as well. So that was a different kind of a time in my life because I couldn't manage my own self because I had some major issues, major health issues after the birth of my second child. So eventually I thought that I have to gather myself back because if I'm not going to manage the time, if I'm not going to do something, then I'm just going to become a simple housekeeper, housewoman. Because basically being a housewife is not a easy job. 24/7 it's a 24/7 job, but no one recognizes you. Exactly, no one acknowledges you and no one recognizes you as a housekeeper, as a housemaker. Exactly. So if you want to make a separate different or separate identification of your own self, then you have to do something else too, along with that household chores and all. So we have to make something else. यहाँ हमने बहुत important बात की है. I also wanted to talk about it कि creating your own identity का concept बहुत important है. ठीक है, just like you said कि like you can be doing a billion things at home. Obviously बच्चों का काम तो 24/7 from day start and day end you have done lots of things in a day. खाना बनाना, चीजें manage करना, even if you have house help उसको भी manage करना बहुत बड़ी responsibility है. बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में वो एंड पे कंसिडर नहीं की जाती. उसको कहा जाता है कि तुमने सारा दिन क्या करना होता है, तुमने तो घर बैठना because your kids are your own responsibility, solely your own responsibility. That's what I think. Definitely I have a house help at home, but my kids are my own responsibility. Definitely I have a very warm family. They look after my kids as well, but basically they are my responsibility. I have to think about them. I have to manage their time, each and everything. That's my responsibility. Being a mom, that's what I prefer. Why do you think it's important for women to create their own identity? मतलब अब इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा बात होती है, खवातीन इस बारे में बात करती हैं जो फुल टाइम जॉब्स नहीं कर सकती, वो रिमोट अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ रही हैं, करती हैं, या कोई बिजनेस कर रही हैं. व्हाई डू यू थिंक, मतलब आपके व्यू में ये वाली चीज अब इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों हो गई है?
Because I think it's a need of a time. Okay, because the time is evolving, time is changing. Women should do something to make their self like up in this environment, to make them some prominent. Because if you're not doing anything, nobody is going to recognize your efforts, yourself even. Okay, what is your worth if you're not doing anything? People will ask you, what are you We doing? discussed कि obviously creating your own identity के बारे में बहुत बात होती है, women are working on it as well, but now let's talk about the opportunities जो हमारे यहाँ पे उन खवातीन के लिए अवेलेबल है. उसके अंदर आपको कोई challenges आते हैं, like किस तरह की opportunities अभी तक आपको आपके business के लिए मिली हैं? Basically अगर आप you're starting a small business, like so you have to, you don't need that much big capital to start a business, like proper business. लेकिन यहाँ हमारी सोसाइटी में एक इशू जो मैं रेज करना चाहती हूँ कि women, those women who are like starting their business with a very small capital, with no employees at all, like single handedly from home, so they're not given proper opportunities, they're not being provided with the proper opportunities. Because उनको वो जो एक मैप, जिस मैप को फॉलो अप करके आगे तक जाना है, उस सेटअप को क्रिएट करने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए जो उनको स्टेयरकेस जो चल के जाना है, जो मैप, ये जो रूट फॉलो अप करना है, वहाँ पर उनको बहुत हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं. कभी लैक ऑफ मनी है, कभी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, कभी लैक ऑफ सपोर्ट है सोसाइटी की तरफ से. क्योंकि ये बहुत प्रेशर होता है कि भाई सिंगल हैंडेड वुमेन है, या लाइक घर से काम करती है, मतलब इनको क्या अपॉर्चुनिटी हम प्रोवाइड करेंगे. और जो लाइक आजकल जो एग्जीबिशंस का टाइम चल रहा है, तो एग्जीबिशंस में जो एग्जीबिटर्स होते हैं वो इतनी हाई अमाउंट रख देते हैं समटाइम्स के. आई हैव सीन लाइक लास्टली आई अटेंडेड वी मार्ट, तो वहाँ पर मैंने देखा था कुछ ऐसी भी थी जिनका बिल्कुल स्टार्ट था, और एग्जीबिशन वो बहुत टेंशन में थी कि भाई एग्जीबिशन अगर नहीं वर्कआउट करेगी तो जो हमारी इन्वेस्टमेंट सारी वेस्ट हो जाएगी. कुछ ऐसे भी होती हैं ना जिनका बैकअप बिल्कुल भी नहीं होता, तो उनके लिए बिल्कुल लॉस है. वही पूरी जमा पूंजी लगा के एक एग्जीबिशन में एग्जिबिट कर रही हैं, और पीछे अगर वो लॉस पे चलेगी तो पीछे कुछ नहीं बचा और बिजनेस खत्म. तो वो एक बीइंग अ वुमेन या बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर, मुझे फील होता है कि एक सपोर्ट सोसाइटी की तरफ से भी होनी चाहिए. हमारी गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं कुछ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही, लेकिन सोसाइटी की तरफ से होनी चाहिए कि अगर कुछ खवातीन अपनी लाइफ में आगे आना चाह रही हैं, दे वांट टू डू समथिंग, दे वांट टू अचीव समथिंग, दे वांट टू चेंज देयर लाइव्स, तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए कि उनके लिए एक स्पेशल होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़, कि उनको मतलब प्रोवाइड करनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ इस तरह की कि वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सके. ज़रूरी नहीं है कि हर कोई जो है ना, मतलब लाखों की अमाउंट लेके स्टार्ट कर रहा है बिजनेस और उसको स्टार्टिंग में इतना लॉस भी हो जाए तो कुछ नहीं. वुमेन, अगर हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ही यही है, अगर आप एक बंदी स्टार्ट करी बिजनेस और उसको स्टार्ट में लॉस हो जाए, तो इनकरेजमेंट सबसे पहले सोसाइटी से आती है कि लो भाई इसके पास तो कुछ नहीं बचा, तो इसका तो बिजनेस खत्म. और यूजुअली बहुत सारे लोगों के बिजनेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड आर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. तो उनके लिए जो वो कर रही है काम, उस लेवल तक आने के लिए स्मॉल स्केल बिजनेस वुमेन्स को भी सपोर्ट की ज़रूरत है सोसाइटी की. इस तरह के आई थिंक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. तो जो मेरा प्रेफरेंस है कि एक होनी चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर उनको प्रोवाइड, जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड. ठीक है, आपने डेफिनेटली बिल्कुल सही कुछ चीज़ों पे बात की, बल्कि सब पे सही बात की. जिस तरह बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड रिसेंटली हमारी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी ये चला है कि सपोर्ट स्मॉल बिजनेस. लेकिन अगर हम उसकी भी बात करते हैं, I know this is going to be somewhat probably a controversial topic or something, but I actually want to talk about it. कि for instance, for a very small scale business जो घर पे based है, और definitely I have seen and heard a lot of about these things. उसके अंदर क्या होता है कि अगर आप कोई अगर आप influencer marketing भी करते हो, you're supposed to send something as well, and you know some influencers would also ask you for money in return. they are charging, actually they are charging too much. Yeah, कि like you know post के charges है, which is I mean, I'm definitely not commenting on the fact this is how they earn, and that's completely fine. But probably, जैसे आपने कहा कि there should be certain categories on it, and especially the fact that मतलब शायद ये बहुत क्लीशे बात हो, but women are supposed to basically support women like us, because होता क्या है कि आप किसी भी उसमें चले जाएं, कल्चर में आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, when you are sitting in a room full of men, ठीक है, you always have to actually make a point that what you are saying, I understand it, I stand by my point as well, and it makes sense as well. ठीक है, सो खवातीन को अभी तक के सोसाइटी में कहीं ना कहीं वो अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करनी पड़ती है, अपने आप को बार बार प्रूफ करना पड़ता है. ठीक है, अब जैसे आपने एग्जांपल दिए लास्ट एग्जीबिशन की, आई हैपन टू कम देयर माई सेल्फ एज वेल.
और वहाँ पे मोस्टली यही था कि लाइक पीपल स्पेंड सो मच. अगर आप फूड स्टॉल्स देखते, बहुत ज्यादा चीजें बना के लाए हुए थे, वो सारी वैसी मोर लेस पड़ी हुई थी. अंदर भी जब आप गए जहाँ पे सारे डिफरेंट स्टॉल्स थे, वहाँ पे भी एवरीबडी वाज वेरी they were disappointed and they were Disappointing, हाँ. definitely worried because probably जैसे आपने कहा most of them women were bread earners for their family और उनको लगा कि बहुत बड़ी Opportunity opportunity है. है. तो इसके अंदर एक चीज तो ये हो सकती है कि जब हम support small business की बात करते हैं, so we should definitely have some selective packages for them. We should promote small scale business as well. हाँ, ठीक है. प्रमोट अगर हम उनको कर रहे हैं, फॉर इंस्टेंस इफ आई हैपन टू हैव अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आई गेट अ लॉट ऑफ रीच, तो आप अपने पैकेजेस रिलेटिवली डिफरेंट कर दें उनके. डेफिनेटली इट्स योर अर्निंग वे, बट आप उनके लिए डिफरेंट कर दें जिनके अच्छे बिजनेस चल रहे हैं, ठीक है. आप उनसे थोड़े से चार्जेस डिफरेंट कर सकते हैं. बिल्कुल आपने सही बात की कि वो अपॉर्चुनिटीज और वो जगह बनाना बहुत मुश्किल है. एक्चुअली जो न्यू बिजनेस वुमेन्स हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी उस तरह प्रोवाइड ही नहीं की जाती. उनके लिए जो इन्वायरमेंट है, जो जगह बहुत तंग कर दी जाती हैं, क्योंकि ये वैसे भी मेल ओरिएंटेड सोसाइटी है. यहाँ पर बीइंग अ वुमेन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ विद ऑल योर 100% एफर्ट्स. सो इट टेक्स more than 100% of yourself if you're a woman to prove yourself as a business woman. आपके लिए सब चीज़ें नेगेटिव कर दी जाती हैं. अगर आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हैं कुछ, या एक सर्टन पॉइंट तक अपने बिजनेस को लेके जाना चाह रहे हैं, जो रेगुलर बिजनेसेस हैं उनसे बहुत ज़्यादा हर्डल्स आपके आगे आती हैं. तो ये मेरा पॉइंट है कि उन औरतों को, उन खवातीन को वो अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी ओपन करके प्रोवाइड करें, क्योंकि जैसे घर में काम करने वाली खवातीन है, हर जगह पे उनके लिए एक्सेसिबल होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना. उनकी एक्सेस नहीं है हर जगह पर. तो अगर वो ऑनलाइन भी कोई चीज़ कर रही हैं या किसी से डीलिंग कर रही हैं, तो लोग कहते हैं कि मतलब जी छोटा बिजनेस है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, कोई लेडी डील कर रही है, तो वो फॉर ग्रांटेड ले जाते हैं. वो चीज़ें जो है ना, फॉर ग्रांटेड लेने वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. स्मॉल स्केल बिजनेस भी बिजनेस ही है. उसको लार्ज स्केल बिजनेस बनाने के लिए उन लेडीज़ को, उन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक अपॉर्चुनिटी की नीड होगी, और एक फैसिलिटीज चाहिए होंगी, एक हेल्प चाहिए होगी, सपोर्ट चाहिए होगी ओवरऑल सोसाइटी की भी, जिसमें सब हैं. मतलब एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे के बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए. अगर आप हैं, मैं हूँ, कोई भी है, हम एक दूसरे के बिजनेस को देखें, हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए. हम खुद नहीं करेंगे तो कोई हमें दूसरा ना प्रमोट करेगा ना सपोर्ट करेगा. हाँ बिल्कुल ऐसी है. लाइक आप किसी भी लेवल पे चले जाएं, लाइक बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, आई वुड लाइक टू शेयर एन एग्जांपल माई सेल्फ दैट मतलब मेरा जो सेक्टर है वो डेफिनेटली मार्केटिंग और लाइक IT रिलेटेड है. सो व्हेन आई टॉक टू अ मैन ऑन कॉल, ठीक है, कि जी इस तरह हम मार्केटिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, दे वुड जस्ट टेल मी स्ट्रेट अवे विदाउट आस्किंग कि अच्छा व्हाट आर द चार्जेस, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स, दे विल जस्ट से, मोस्ट ऑफ देम वुड से, हाँ आप मुझे ब्रोशर बना के भेजें. फिर लाइक excuse me, there is a proper way of talking to women, ठीक है. You are never going to talk like this to a man. You're always going to say अच्छा आपके charges क्या हैं, and it has happened multiple times. तो जो एक ये वाला एस्पेक्ट है ना कि खवातीन को हर जगह बार बार अपनी पोजीशन अर्न करनी पड़ती है, प्रूव करनी पड़ती है, लाइंस ड्रॉ करनी पड़ती हैं, ठीक है. इसके ऊपर, और आई थिंक इसमें सबसे बड़ी सपोर्ट जो हमें मिल सकती है ना, वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, ठीक है. इफ at any platform I can help someone grow, I can probably just tell someone कि if you want online jewelry you can always check your brand, ठीक है. if you want to order food online तो आप वहाँ से try करें. ये छोटे छोटे जो gestures है ना, without actually asking for something in return, I think that's going to make a huge difference. Definitely. अच्छा, अब आपने एक बहुत अच्छी और बात की about those resources जो खवातीन के पास नहीं होते, ठीक है. probably they have the skill set, jewelry, homemade, even my own mother, उनको भी ज्वेलरी का बनाने का बड़ा शौक आया कुछ अर्सा पहले, और वो homemade ज्वेलरी बनाती थी. obviously she was probably way much into the skill, but उसको market कैसे करना है और pricing कैसे करनी है, she was not aware of those things. So what would you like to say about that? उन resources के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? Like if there should be some workshops, if there should be some online sessions, उसमें हम क्या कर सकते हैं as a society?
there should be some online learning session for those women who are working from their home, especially the handmade items. क्योंकि online आप learning उस तरह तो आप कर लेते हैं कि how to make a product, लेकिन Yeah. how to market those product, how to eventually you can say कि how to introduce your product in the market, how to make a mark is not that easy for every woman. Yeah. तो उसके लिए कुछ sessions होने चाहिए. I think अच्छा, अब while we are talking about these opportunities and these resources, obviously these are all very important things. But another important thing, because I have like a circle of women who work with me online, जो remotely मेरे साथ काम करती हैं, one issue that I have seen myself is managing the work with motherhood as well. ठीक है, because obviously वो एक full time job Full-time है job. और वो sometimes things get very frustrating for them. Like I actually say hats off to those women who manage it. उसके लिए like what would you like to add on that? कि I believe कि जब आप एक business run कर रहे हो ना, या even आप एक job भी कर रहे हो remote, तो आप बहुत चीज़ों के साथ एट अ टाइम काम कर रहे हो. आप इमोशनल लेवल कर रहे हो, आप फिजिकल लेवल कर रहे हो, आप चीज़ें घर की मैनेज कर रहे हो. एट टाइम्स थिंग्स गेट फ्रस्ट्रेटिंग डेफिनेटली. उसके अंदर डू यू थिंक दैट देयर शुड बी सम सॉर्ट ऑफ हेल्प फॉर दैट पार्ट एज वेल? टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है, any sort of help which can help you grow professionally as well along with it? Or is it something जो आप खुद ही मैनेज करते हो? Like I have seen my friends who are mothers, they go through a lot of phases. Like शुरू में it's obviously it comes with postpartum depression, जो itself एक अलग टॉपिक है, ठीक है, उसको मैनेज करना, घर मैनेज करना, और फिर फाइनली कुछ उसमें से ये होता है, some of them become bitter moms, some of them finally overcome it. So do you think that there should be some resources, helpful resources and talks, or probably groups online about it who talk about this aspect? Actually, there are so many groups, I think, in which women can talk. I think for parenting session and all, but not all women are comfortable. Yeah. Comfortably talk on on those platforms in those sessions, because you cannot share your problems with everyone. Exactly. And because not everyone can understand your problems, your difficulties, your responsibilities, and your what you're going through is only you one can understand what you're going through. So it's very difficult sometimes to share and to discuss with anyone else. So there are certain platforms which are available for the new moms and for the old moms as well. So if we talk about those issues like you are highlighting, Like I'm saying कि काम को मैनेज करना बच्चों के साथ, बच्चों even के if it's साथ. a remote job, ठीक है. Remote job. So like if there are a few tips which you can share, like how do you manage it, किस तरीके से आप उसको मैनेज कर सकते हैं? You are very right about it, that all of us are not comfortable talking to everyone about our yes, problems. because I'm talking about myself as well. कि I'm not comfortable in talking to everybody, like talking to anyone else about my problems, being a mom or being a woman entrepreneur, because there are some problems which we are facing because we are not comfortable in it. So अगर tips की आप बात करें तो I would like to tell people कि अगर आप अपना business start कर चुकी हैं या start करना चाह रही हैं with the small kids, तो time management is very much important. Time management is important, support important. You need to be ambitious. You need to be a task manager. कि multiple, क्योंकि अगर आप if you're a mom, then I think you are a superhero. Yeah. क्योंकि being a mom is not an easy task at all. There's Especially no with the time small, off. no time off, exactly. No time off, no proper sleeping time, no proper eating time. So you have to manage yourself first. First you have to gather yourself, you have to manage yourself, then you have to manage your time with your kids as well. So you have to prepare them, your kids as well, for your other duties as well. क्योंकि अगर आप बच्चों के माइंड में नहीं होगा कि मम्मा ने कुछ और भी करना है, हाँ, तो she उनके has माइंड a में ये life होगा कि herself she is as for well. us only. She is मतलब all the time 24/7 mama is there for us, because mamas are always there for the kids. Yeah. But there should be a specific time for mothers as well, कि उनको बच्चों को प्रिपेयर करना चाहिए कि भाई we should have some own space as well, कि जिसमें हमने अपनी responsibilities other than you भी करनी है अपनी पूरी. So वो एक टाइम मैनेजमेंट जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है उसके अंदर. और एज आई सेड टू यू के टास्क मैनेजर होना बहुत ज़रूरी है कि आपने टास्क को किस तरह मैनेज करना है, कि ये आपके जो होम टास्क है उनको आपने कैसे करना है, और जो आपके वर्क टास्क है उसको आपने किस टाइम में कैसे मैनेज करना है. यूजुअली आई हैव सीन के जो इस टाइप की जो स्मॉल किड्स की मदर्स होती हैं वो सारा काम रात को करती हैं,
अगर उनका कोई Yeah. होममेड काम है तो वो रात को ही कर सकती हैं, हाँ. या जो अगर फोन पे डीलिंग है, कुछ ऑनलाइन करवा रही हैं, ऑर्डर्स प्लेस करवा रही हैं, कुछ चीजें करवा रही हैं, शिपमेंट्स करवा रही हैं, तो वो सारा कुछ ऑनलाइन करना उन्होंने, उसके अंदर भी एक प्रॉब्लम है ना, आपके पीछे बच्चे रो रहे हैं हाँ. और यू हैव टू मेक सम इम्पोर्टेंट कॉल्स, तो वो हाँ. एक मैनेजमेंट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आपने टाइम मैनेज करना। बच्चों के टाइम को सबसे पहले मदर्स के लिए मेरा ये है कि बच्चों के टाइम को मैनेज करना सीखें, वो बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी इस लर्निंग फेज में हूँ क्योंकि मेरे भी बच्चे बहुत छोटे हैं, तो इस लर्निंग फेज से और बहुत सारी मदर्स गुजरी हैं जो कि अपना बिजनेस भी चला रही हैं और उनको टाइम मैनेज करने की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना। तो वो एक ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आपने सपोर्ट के साथ चलना है, आपने सपोर्ट के साथ ही सब कुछ करना है। आप अकेली सिंगल हैंडेडली कर भी देती हैं मदर्स, क्योंकि मदर्स तो मेरा ख्याल है कि सुपर मॉम्स ही होती हैं, मॉम्स आर नॉट सिंपल मॉम्स, दे आर सुपर मॉम्स ऑलवेज। तो वो आप मैनेज करना सीख लेते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो थोड़ा बहुत ये होता है कि आपको एक गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। तो आई वुड से कि अपने टाइम को मैनेज करें, अपने वर्क टाइम को सेपरेट करें और अपने होम टाइम को सेपरेट करें, तो फिर आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात जो आपने की ना, वो मी टाइम पे थी, Me ठीक है। time, yes. सेटिंग दैट बाउंड्री, लाइक असल में हमारे यहाँ एक मसला ये होता है कि हम बाउंड्रीज के कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करते हैं, मतलब देयर आर नो बाउंड्रीज इन आवर सेल्फ आजकल के टाइम में देयर इज नो सेल्फ केयर, क्योंकि आप सेल्फ केयर को और मी टाइम को बिल्कुल जरा माइनस कर देते हैं। हाँ, तो इसकी वजह से डेफिनेटली फिर यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग प्रॉपर्ली, ठीक है। यू आर जस्ट मैकेनिकली प्रॉब्ली परफॉर्मिंग ऑल योर ड्यूटीज। तो ये आपने बहुत अच्छी बात की कि एक मी टाइम अपना थोड़ा सा अलॉट करें, ठीक है। उसको अब आप अलॉट कैसे करेंगे, आई थिंक इस पे आप ज्यादा बेहतर बता सकती हैं। पहला स्टेप ये होगा कि आस्क फॉर सपोर्ट, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू एवरीथिंग अलोन योरसेल्फ। मतलब एक सबसे बड़ी चीज जो ये है, डेफिनेटली एवरीबडी डोंट हैव, मैं इसको लग्जरी कहती हूँ कि आप कम्युनिकेट कर सके अपने पार्टनर के साथ कि लाइक दिस इज व्हाट माय ड्रीम्स आर, दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड आई नीड योर सपोर्ट इन इट, ठीक है। सो सबसे पहली चीज प्रॉब्ली ये होनी चाहिए दैट यू शुड बी एबल टू टॉक टू योर पार्टनर अबाउट दीज थिंग्स। आप वो सपोर्ट मांगे। लाइक हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली सफरिंग को और मैनेजिंग एवरीथिंग अलोन को ग्लोरीफाई किया जाता है, ठीक है। जो हम हमेशा सुनते हैं कि यू नो मैं तो ये भी करती थी, मैं तो ये भी करती थी, मैं तो कपड़े भी ऐसे हाथ से धोती थी, 4 बच्चे भी संभालती थी, 20 रोटियां भी पकाती थी, ठीक है। दैट कॉन्सेप्ट हैज टू स्टॉप समवेयर, वी हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू इट, ठीक है। एंड बिसाइड्स आई थिंक इफ एट वन पॉइंट इन योर लाइफ यू कैन अफोर्ड हाउस हेल्प, गो फॉर इट, बिकॉज आप ऐसे ही अपना पार्ट प्ले करें सोसाइटी में किसी का घर चलाने में, अगर आप ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। आई कम्प्लीटली नो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बट दिस इज समथिंग आप कर सकते हैं, आप वो अवेल करें, ठीक है। फिर आप अपने पार्टनर से सपोर्ट मांगे, फिर आप अपना मी टाइम करें। सेल्फ केयर पे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। आई हैव लिटरली टॉक टू सो मेनी मैरिड वुमेन एंड यू नो दे विल टेल के शादी से पहले तो यू नो आई यूज्ड टू गेट मैनिक्योर्स पेडिक्योर्स, और अब तो ये बहुत ही ना मतलब बहुत से लग्जरी में आ गए क्योंकि टाइम ही नहीं होता, ठीक है। सो टाइम ही नहीं मैनेज होता ना, बहुत सारी। अब उन टास्क मैनेज करने में आई बिलीव कि आपको अपनी लाइफ और अपनी पर्सनालिटी इंडिविजुअली भी मैनेज करनी चाहिए, ठीक है। व्हाट्स योर टेक ऑन इट, मतलब डू यू agree with all these things that I have Definitely I agree, क्योंकि me time is very much important। जब तक आप अपने लिए एक सेपरेट स्पेस, सेपरेट टाइम नहीं मैनेज करेंगी, you cannot get those creative ideas if you want to create a difference in the society। तो जो आइडियाज आपको आने हैं, अगर आपके पास टाइम ही नहीं होगा उनको मतलब रीथिंक करने का, चीज़ों को गैदर करने का अपने माइंड में, तो आप कुछ भी डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकेंगे। तो आप अपनी लाइफ एक ही रूटीन से गुजार देंगे पूरी। तो वो जो मी टाइम है, सेल्फ केयर टाइम है, जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक सबको इसके ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मदर्स ऐसी भी हैं, वुमेन ऐसी भी हैं जो कि इतनी सी हेल्प, इतनी सी सपोर्ट, इतना सा मी टाइम मिल जाए तो यहाँ से यहाँ पहुँच सकती हैं। Which is अच्छा, और दूसरी बात ये कि ये बेयर मिनिमम है। अगर आप देखें तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इट्स नॉट लाइक आपने ऑडी नहीं खरीद ली अपने लिए, या आप जो है वो कहीं लाइक मालदीव्स नहीं जा रहे हो, बिकॉज ऑब्वियसली वी डोंट, मोस्ट ऑफ अस डोंट कम फ्रॉम दैट क्लास एंड दैट्स फाइन, वी आर स्ट्रगलिंग टू गेट देयर। तो वो इतनी सी चीज करके भी ना, बेयर मिनिमम लेके भी ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी चीज, आज बहुत क्रेजी कर ली है, बहुत अचीव कर लिया। सो या यू आर वेरी राइट अबाउट इट। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, along with like running your business, managing your life as well along with it, because managing your family, your kids, everything else, because it's not only your family, you have
प्रॉपर सराउंडिंग टू मैनेज, टू मीट एंड टू ग्रीट। तो वो आप जब शादी के बाद की लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। पहले आप इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पहले भी मैं बिजनेस कर रही थी बैग मेकिंग का, उसमें वो बहुत टाइम टेकिंग बिजनेस था। मैंने उसको क्विट इसलिए किया था शादी के बाद क्योंकि आई कुडंट मैनेज दैट टाइम, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ थी। आपने अपना जो भी आपकी प्रोडक्ट थी उसको आपने अपने ऑर्डर्स को प्रॉपरली किस तरह मैनेज करना है, किस तरह, क्योंकि मेकिंग आपने खुद करनी है उसकी, तो इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। तो वो इसलिए मैंने क्विट किया क्योंकि वो बहुत, अब ऑब्वियस सी बात है शादी के बाद आपने टाइम फैमिली को भी देना है। आपका एक टाइम ऑब्वियसली डिवाइड होता ही होता है, ठीक है ना। सारा टाइम आप सारा मी टाइम नहीं ले सकते और सारा कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। यू हैव टू मैनेज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द फैमिली एज वेल, सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एज वेल। तो उस चेंजिंग के साथ साथ आपने अपने आप को ग्रो कैसे करना है, और ग्रो करने के बाद अपने आप को दोबारा उस पोजीशन में कैसे लेकर आना है कि मैं दोबारा से कुछ कर सकूं, कुछ स्टार्ट कर सकूं ऑन माई ओन, एंड कि दोबारा से अपनी आइडेंटिटी को कैसे मतलब प्रूव करूं या रिक्रिएट करूं। So that's very important कि आप अपने आप को पहले अंडरस्टैंड करेंगे what do I want in my life, like despite of having kids only, कि what do I want in my life and what do I want to achieve in my life. In the long run you should like see yourself at some point कि भाई I have to achieve this in the coming 5 years. So वो तो circumstances पे डिपेंड करता है ना कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएं, लेकिन आपके माइंड में एक मैप जरूर होना चाहिए, एक मैप आउट करके रखना चाहिए कि भाई ये चीज़ें मैंने अचीव करनी है। तभी आप उन गोल सेट करने चाहिए, तभी आप उनको अचीव करने के लिए कोई एफर्ट कर सकते हैं, और तभी आप चीज़ों को मैनेज करेंगे, तभी आप टाइम मैनेज करेंगे, और तभी आप सपोर्ट मांगेंगे भी। आई थिंक सपोर्ट मांगनी पड़ती है। समटाइम्स होता है आपको सपोर्ट खुद भी मिल जाती है, और समटाइम होता है कि आपको शो करना पड़ता है कि आई नीड सपोर्ट एज वेल, कि फैमिली की सपोर्ट है, हस्बैंड की सपोर्ट है। ये एक जॉइंट कह लेंगे वेंचर होता है। अगर एक वुमेन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो खवातीन के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अकेली घर बार छोड़ के नहीं निकल के कुछ भी कर सकती। तो पीछे फैमिली को देखना है, बच्चों को देखना है, घर को देखना है, तो उसके लिए आपको एक म्यूचुअल एफर्ट करनी पड़ती है फैमिली के साथ, हस्बैंड के साथ, कि भाई प्लीज हेल्प मी, सपोर्ट मी, आई नीड योर सपोर्ट। तो अगर आपको सपोर्ट मिल जाए तो फिर वेल एंड गुड, यू आर गुड टू गो। आई लव हाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने रेज किया है, क्योंकि इसके बारे में वाकई यही होता है कि हम सब कुछ अकेले करने को ना बहुत बड़ी अचीवमेंट समझते हैं, और इवेंचुअली ऑब्वियसली हम बर्नआउट पे चले जाते हैं, फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते, टोटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, आप कुछ अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं और मेंटली भी एग्जॉस्ट हो रहे होते हैं। नहीं, बहुत बहुत प्यारी बात की आपने कि सपोर्ट मांगने में कोई बुराई नहीं है, लाइक go for it, ask like you know I need your support or I need me time, या मुझे इस तरीके से चीजों को मैनेज करने में हेल्प आउट चाहिए, डेफिनेटली ये बहुत जरूरी है। They are your family, they should give you support. हाँ, exactly. They are your family, they are the people you care and they care about you as well. तो it's not a big deal कि अगर वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और आप उनकी सपोर्ट मांग रही हैं, तो हाँ, वो रेसिप्रोकेशन का एलिमेंट होना चाहिए, और डेफिनेटली डेफिनेटली हाँ, इक्वालिटी। और ये जो सफरिंग का आइडिया हमने ग्लोरीफाई किया है ना, इसको कहीं पीछे छोड़ने की बहुत जरूरत है। कि मैं बहुत बीमार थी, मैंने सब कुछ खुद मैनेज किया, मैंने ये भी किया वो भी किया। इफ यू हैव समवन, ask for help. If you have someone who can make things easier for you, ask for it. ये जो एक सुपर हीरो वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन योर ओन, it probably needs to stop somewhere now. That's very important. अच्छा, like I love this podcast so much because इसके अंदर डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी चीज़ों पे बात की कि आप बच्चों के साथ चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं। I especially love the part that the idea of women and their identities just revolving around their marriages and kids is finally changing somewhere. अपने लिए भी कोई आप लाइफ बिल्ड करें साथ साथ, because obviously जब आपकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है एंड यू आर वेल सेटिस्फाइड, बिकॉज ऑब्वियसली यू नो मोस्ट ऑफ अस कम फ्रॉम बैकग्राउंड जहाँ पर हमने बहुत मेहनत करके डिग्रियां हासिल की हैं यार, और फिर उसके बाद अगर आप बिल्कुल घर बैठ गए हो, यू समवट स्टार्ट रिग्रेटिंग दैट डिसीजन। ठीक है, सो आई लव द आइडिया कि आपने शेयर किया कि you know we have to build something for ourselves, but most importantly I love the part where you told us about those hurdles that women are facing. हम बात तो बहुत करते हैं कि do something, कुछ करो, अपना बिजनेस चलाओ, घर से बैठे ये कर लो, वो खवातीन भी तो करती हैं, but I think nobody talks about those opportunities or hurdles that we face. ठीक है,
वो एग्जीबिशंस अच्छे बहुत लगते हैं कि यार वो वहाँ पे ये एग्जीबिशन में स्टॉल लगा लेते हैं, बट वो लगाने में कितने प्रॉब्लम्स आते प्रॉपर हैं। आपको एफर्ट हाँ, रिक्वायर्ड होती है, हाँ, क्योंकि अगर आप लैक ऑफ सपोर्ट चल रहे हैं ना तो आप नहीं कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, एक प्रॉपर जॉइंट वेंचर बन जाता है। अगर आप कोई चीज डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो हाँ, इट लाइक नीड्स लॉट्स ऑफ एफर्ट, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि आप डिस्प्ले कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो वो हाँ, आप डिस्प्ले करने का मतलब ही है कि आप अपनी सारी एफर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। हाँ। पीपल आर नॉट लुकिंग ओनली एट योर प्रोडक्ट्स, दे आर लुकिंग एट योर एफर्ट। Exactly, and they're even looking at you as well. I mean, when you're standing at that stall or whatever, तो लोग आपको भी देख रहे होते हैं, like आप उनसे communicate करके you are actually the brand ambassador for your brand. You're telling Communication them. matters a lot हाँ, as well. communication exactly. Marketing पे आपने बात की कि I mean, obviously इस चीज का भी आइडिया और ये सेंस भी होना कि कहाँ पे स्टॉल लगाना चाहिए, वहां से कितनी हमें फुटफॉल आएगी, क्या जी। ट्रैफिक आ रही है, क्या चांसेस हैं। सिर्फ आप सेल पे फोकस नहीं कर रहे होते। आई थिंक ये एग्जीबिशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मार्केटिंग पर्सपेक्टिव एज वेल। for the small business especially, हाँ. because you're creating your name, you're promoting your business, you're promoting हाँ. your brand as well over there. हाँ हाँ, इस बारे में भी डेफिनेटली बात होनी चाहिए। रैपिंग इट अप, आपने वैसे तो थ्रू आउट काफी अच्छी टिप्स शेयर की, मुझे बहुत मजा आया पर्सनली इस पॉडकास्ट में। एनी अदर वाइजर वर्ड्स दैट यू वुड लाइक टू टेल दोज वुमेन जो हमारी पॉडकास्ट देख रही थी यहाँ तक, जिन्होंने देखी एंड दे आर स्टिल स्टक समवेयर के कहाँ से स्टार्ट करें। हो सकता है किसी के पास उस तरह का कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो, किसी के पास उस तरह की मेंटल अभी स्पेस ना हो, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल? I would like थोड़ी सी मैं मेजर टिप्स उनको ये दूंगी कि just first gather yourself, you just need yourself too, कि आप सिर्फ लोगों के लिए नहीं, आप अपने आप के लिए भी हैं। gather yourself, create plans in your mind, create ideas, and then just map them out, write them out, और फिर start working on them. You just need like you can start a business from the very small capital, कि like आप 10K 20K, अब तो business की इतनी वैरायटी है, तब अब स्पेशली जो हैंडमेड बिजनेसेस होते हैं उनको आप 20-30K से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इट फ्रॉम योर होम, आप घर में स्टार्ट करें, और थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको स्टार्ट में हस्बैंड की रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि अगर आप बच्चे शच्चे हैं तो फिर उसमें तो आपको हस्बैंड की सपोर्ट रिक्वायर्ड होती है। जो भी टाइम आप दिन के अंदर मैनेज करिए, अपने आप को गैदर करें उन चीज़ों के लिए कि भाई मेरा किस तरह स्टार्ट करना है, कैपिटल के साथ क्या क्या चीज़ें आपने प्रोडक्ट्स आपने मार्केट से उठानी है, क्या क्या चीज़ें आपने प्रोडक्ट बनानी है, फिर इनको किस तरह जो है ना, स्पेशली इसमें सोशल मीडिया का काम जो मैं अप्रिशिएट करूँगी कि सोशल मीडिया का काम इसमें जो सोशल मीडिया टीम्स होती हैं वो इसमें आप अगर आप उनकी हेल्प ले लें वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप खुद भी कर सकती हैं, ट्राई करें, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोडक्ट डिस्प्ले करें, अपना ब्रांड नेम बनाएं और उसके ऊपर लेके चलें। आजकल तो सोशल मीडिया का ही टाइम है, थ्रू आप सोशल मीडिया अपने वर्क को हाईलाइट कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। थोड़ी सी हेल्प आप सोसाइटी से लें, कि जो सोशल मीडिया की हेल्प है ये आप बेसिकली सोसाइटी से ही ले रही हैं, आप किसी कंपनी को हायर कर लें अपने साथ, या किसी की भी क्लाइंटेज आप स्टार्ट कर लें, ये चीज़ें आप अपने बिजनेस के लिए करें और इवेंचुअली आप देखेंगे कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, विद इन 2 या 3 years आपकी ब्रांड एक नेम मार्केट में बना लेगी, योर ब्रांड विल मेक अ मार्क इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी एफर्ट्स अपने आप को इनकरेज करती रहें कि यू कैन डू इट डेफिनेटली। अगर आप अपने आप को खुद इनकरेज करेंगी तो फिर आपको बाकियों की इनकरेजमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप अपने आप को जो है ना सेल्फ प्रमोट करें, सेल्फ इनकरेज करें और अपना मी टाइम निकालें, उसमें अपने लिए आइडियाज़ क्रिएट करें। तो दैट्स हाउ यू कैन स्टार्ट योर ओन, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम द स्मॉल स्केल। क्योंकि मैं स्मॉल स्केल बिजनेस की बात बार बार इसलिए कर रही हूँ बिकॉज आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल स्केल बिजनेस, तो मैं उसी चीज़ को प्रमोट ज़्यादा कर रही हूँ कि मतलब मेरी तरह की जो भी हैं लेडीज़ हैं जो वर्किंग वुमेन अब काम कर रही, बिकॉज आई हैव डन अ जॉब एज वेल बिफोर मैरिज। सो मैं बेसिकली HR की पर्सन हूँ बिकॉज आई हैव डन माई बैचलर्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज। तो मैं अपने उस बैकग्राउंड को थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि मैंने और फिर जब मेरे बेसिकली मैंने लम से भी वर्कशॉप्स वगैरह ली हुई हैं टीम बिल्डिंग एंड टीम मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर, तो उस टाइम के अंदर मैं इन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा फोकस थी कि हाउ शुड आई मेक माई ओन टीम और किस तरह मैं अपने काम को आगे लेके चलूँ। फिर बीच में स्टॉप लग गया, वो एक अलग बात है, लेकिन अब मैं अपने आप को दोबारा उस तरह गैदर कर रही हूँ कि आई शुड डू दैट थिंग
बैक इन माई माइंड कि आई शुड स्टार्ट दैट थिंग बैक इन माई माइंड कि मैं किस तरह से अपने आप को दोबारा ऊपर लेके चलूँ, और अगर मैं टीम बनाती हूँ या अगर मैं कुछ स्टार्ट करती हूँ विद द एम्प्लॉयज़ एंड ऑल, तो मुझे किस तरह चीज़ों को मैपअप करना है। लेकिन बैक टू द स्मॉल स्केल पॉइंट, हम उन चीज़ों को स्मॉल स्केल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर हमारे पास कोई प्रॉपर हेल्प नहीं है फिर भी। तो ये अपने आप को गैदर करना है, अपने आप को समझाना है कि हमने किस तरह अपना नाम बनाना है सोसाइटी में, किस तरह मार्क बनाना है, अपनी प्रोडक्ट्स को किस तरह लॉन्च करना है। और दैट्स ऑल कि आप थोड़ी सी सोशल मीडिया से हेल्प लें, थोड़ी सी अपनी फैमिली से हेल्प लें, थोड़ी सी अपने आप से हेल्प लें कि किस तरह से आपने अपने बिजनेस को रन करना है। तो आई थिंक यू कैन डू वेरी वेल। Thank you so much, Khudeja. I especially loved so many things about this podcast. Thank you. सबसे पहली जो आपने यहाँ पे टिप दी, सेल्फ encouragement और सेल्फ प्रमोशन, which is very important because सबसे पहले हम क्वेश्चन अपने आप को करने वाले खुद ही होते हैं हमेशा। सबसे पहले हमारे ही जहन में सेकंड थॉट्स आती हैं, if I be able to do it or Like not. just block all the negative thoughts. I loved, you know, your confidence and your motivation energy. Thank you. I am sure that everybody watching this podcast must have seen this energy और वो अपने साथ commit करेंगे कि you know I'm going to have this energy in my life as well. Thank you so much again for coming so and much. sharing all these things. This is definitely going to be a gateway to some of the opportunities and resources that we all can gather together and you know help those women who are trying to build something along with their homes. They're trying to build something for their lives, which is not an easy thing to do, trust me, especially given all those you know well-centered and you know well-rooted stereotypes and you know gendered roles that our society has set for women. Thank you so much for listening and watching our podcast. See you soon in another exciting episode.